हम उसे वहां से आगे बढ़कर 45 में जाता। पैंतालीस में हम ऐसे पढ़ते हैं, यशायाह 45 उसका 18 वचन पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही अब कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। The Lord reminds us in the 18th verse of Isaiah 45, for thus says the Lord, who created the heavens, who formed the earth and made it. He did not create it empty. He formed it to be inhabited. I am the Lord and there is no one. God says, I did not recreate this earth so as it to be empty and void. हालेलुया। मेरे पृथ्वी को दोबारा नहीं सृजाया कि वो सुनसान पड़े रहे, उसके लिए मैंने नहीं बनाया उसको, मैंने उसको इसके लिए रचाया कि वो बसने के लिए, उसमें लोग बने रखे, जानवर बने रखे, पेड़ बने रखे, बढ़ते रखे। Hallelujah. I recreated this earth with my spirit hovering over it and with my sun shining his face upon it so that it will be inhabited. Hallelujah. I recreated you, O child of God, not to remain barren anymore, not to be fruitless, but to bear much fruit and to reproduce your kind. Hallelujah. ഞാൻ നിന്നെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചത് നീ ശൂന്യനായി കിടക്കുവാനല്ല, നീ മച്ചിയായിരിക്കാനല്ല, അനേക ഉത്തമ പൗരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതിനായിട്ടത്രേ. हालेलुया। എനിക്ക് വേണ്ടി അധികം ഫലം കഴിക്കേണ്ടതിനത്രേ. मैंने तुझको नए सिरे से इसके लिए नहीं सृजाया तो ऐसे बेकार में बने रहे, तू फलवंत होते जाए, तू फलो बढ़ो, अनेकों को ऐसा उत्पन्न करो, जन्माते जाओ परमेश्वर की महिमा के लिए। वहां से आगे बढ़ता हम उसका 49 में नजर डालता। We move on to 49th chapter का 19 to 21। हम 19 से पढ़ते हैं 49 अध्याय से। तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े हैं और तेरे जो देश खंडहार ही खंडहार है, उनमें अब निवासी ना समाए और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। Surely your waste and your desolate places and your devastated land, surely now it will be too narrow for your children, and those who swallowed you up will be far away. उसने देखा, this was remaining, my earth was remaining empty and void, my life was barren. He says, no more. Hallelujah. I am in the business of recreating it so that it will be inhabited again. It will reproduce again. उसने देखा मेरा जीवन ऐसा पड़ा है, सुनसान पड़ा है। प्रभु कहते ऐसा नहीं पड़ा रहना है, ऐसा नहीं पड़े रहना है। मैंने पृथ्वी को नहीं सृजाया उसके लिए, मैंने तुझको नए सिरे से नहीं सृजाया उसके लिए। तब तुम मन में कहेंगे, किसने इनको मेरे लिए जन्माया? मैं जन्माऊंगा तेरे लिए। If you are desirous, I am in the business of giving you children. I am in the business of making you productive. Didn't I make Sarah productive? Didn't I make Abraham productive? I will make you productive as well. Hallelujah. कहते मैं बनाऊंगा तुझको, उपजाऊ बनाऊंगा तुझको. You will be fertile once again. You will give birth to such generations. Hallelujah. As I caused Abraham and Sarah to do. Hallelujah. Abraham ne മച്ചിയായ സാറയെയും എനിക്ക് വീണ്ടും ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കാമെങ്കിൽ hallelujah നിന്നെയും ഞാൻ ഫലം കായ്ക്കുന്നവനാക്കി മാറ്റും. हालेलुया। इतने संतान तुम्हारे लिए जन्माया जाएगा। पुत्रहीन और बांझ हो गई थी मैं, दासत्व में और यहाँ वहां घूमती रही, इनको किसने पाला? You will say in your heart, who has borne me these? I was bereaved, I was barren, and I was exiled, I was put away. Hallelujah. Who has brought these up? इतना ही नहीं, मैं जन्माऊंगा तेरे लिए, मैं उनको बढ़ाऊंगा भी, पालन पोषण भी मेरे हाथ से होगी, पवित्र आत्मा के द्वारा होगी, स्वर्गीय भोजन के द्वारा होगा। Not only that I'll keep you, give birth to the children, I will bring them up as well. Hallelujah. I will feed them on heavenly stuff.
and the Holy Ghost will keep guiding them. They shall prosper, says the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हमें बड़े तेज करना चाहिए. प्रभु अपने ऊपर लेना चाहता है ये सब. हालेलुया. पूरी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेना चाहता. हमें फुलवाने का, हमें फलवंत बनाने का, हमें आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी प्रभु चाहता वो अपने कंधे पे ले ले. हम आगे बढ़ते हैं. हम वहां से जाकर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में जाते हैं. यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा उसने जो बात उसके हृदय की बात हमें सुनाया, हमने सुना. अब यिर्मयाह के द्वारा वो क्या कहता, ये तो रोने वाला है. देश की पुत्री का नाश हो रही है, सब कुछ मिट गई है. ऐसे नाश और संकट और दुख से गुजरता. तब भविष्यवाणी आती है 23वें अध्याय का 3 और 4 पद तक. तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची है उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं को भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूले और फलेगी. I will gather the remnant of my flock out of all the countries where I have driven them, and I will bring them back to their fold, and they shall be fruitful and multiply. वे खुद आने का सामर्थ्य भी नहीं रखता, लेकिन अगर इच्छा है तो, चाहते तो मैं जाके ले आऊंगा. Even in the time of affliction and barrenness and drought, your counselor, your teacher will not remain hidden to you. प्रभु कहते हैं ऐसी अवस्था है, उड़ के आने का सामर्थ्य नहीं है. दूसरा लड़का उड़ के आया, लेकिन इनमें सामर्थ्य नहीं है. वो रोता है, मुझ में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन इच्छा है, तमन्ना है, पश्चाताप मैं करता हूं, बड़े बड़े पश्चाताप करता हूं. प्रभु कहते मैं आऊंगा, मैं तुझे उठाऊंगा. ऐसी कठिन परिस्थिति में भी तेरा उपदेश छिपी नहीं रहेगा. मैं आऊंगा, मैं लौटाऊंगा. I only caused you to go astray in my anger, but now since you are repenting, I'll come and gather you back. Amen. I'll carry you back on my shoulders. मैं तुम्हें उठा कर ले आऊंगा. ऐसे परमेश्वर का वायदा है. ऐसी बुरी अवस्था में भी कहते मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे. हालेलुया. चलाने के लिए मैं लोगों को भी तैयार करूंगा. वचन सिखाया जाएगा, उपदेश दिया जाएगा, अगुवा होगा. हालेलुया. दोबारा मैं चराऊंगा उन्हें. हालेलुया. He says they will not be deprived of shepherds over them. I will provide for shepherds. They will still continue to hear words of counsel, pure counsel from the Lord. Hallelujah. और वे लोग नाराज नहीं होंगे. They will not be dismayed, neither shall anyone be missing. अभी वो नष्ट नहीं होंगे. ऐसे यहोवा की वाणी है. What a blessed God we serve. What a compassionate God we serve. What a faithful shepherd we follow. Hallelujah. എത്ര വലിയവനായ ഒരു ദൈവത്തെ നാം ആരാധിക്കുന്നു. എത്ര വിശ്വസ്തനായ ഒരു ഇടയനെ നാം പിരിച്ചെല്ലുന്നു. എത്ര കരുണാനിധിയായ ഒരു രക്ഷകൻ നമുക്കുണ്ട്. हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना दयालु है. और हमारी अगुआ, हमारा चरवाहा कितना भरोसेमय है. हालेलुया. हम आगे बढ़ते हैं. हम देखते हैं कि यहेजकेल के द्वारा उनको क्या कहना है, वो पीढ़ी के लोगों के लिए उसके पास क्या संदेशा है. हम 2-3 भाग पढ़ेंगे. We move on to the book of Ezekiel chapter 19 10-13. यहेजकेल 19वें अध्याय से हम पढ़ते 10 से. तेरी माता जिससे तू उत्पन्न हुआ वो तड़ पर लगी गई दाखलता के समान थी, गहरे जल के कारण फलों और शाखाओं से भरी हुई थी. Your mother was like a vine in a vineyard, planted by the water, fruitful and full of branches by reason of abundant water. प्रभुता करने वालों के राजदंडों के लिए उसमें मोटी मोटी टहनियाँ थी, और उसकी ऊंचाई इतनी हुई कि वो बादलों के बीच तक पहुंची, और अपनी बहुत सी डालियां समेत बहुत ही लंबी दिखाई पड़ी. Strong stems became rulers, scepters. It towered aloft among the thick boughs. It was seen in its height with the mass of the branches. देखते कि तुम याद करो, प्राचीनों के विषय में याद करो.
अब्राहम, इसहाक, याकूब और तेरे प्राचीनों को मैंने ऐसा आशीष किया था, इतना आशीर्वादित किया था, वे फूलते थे, फलते थे, वो आसमान तक बढ़ते थे। हालेलुया। स्वर्गीय आशा में बने रहते थे, मेरे पथ चिन्हों में चलने के प्रयास किए थे, स्वर्गीय अति ऊंचाई के दर्शन पाया करते थे, उनकी शाखाएं स्वर्ग तक पहुंचते थे, अर्थात उसके संतान भी ऐसे ऊंचाई में खड़े किए थे। Remember your patriarchs, your forefathers, Abraham, Isaac, and Jacob, and their children, how they walked in my footsteps, and how they prospered, how I blessed them, how their children also inherited the land. Remember, they grew strong. Amen. They prospered in everything that they did, and they gave rise to such offspring. They would also inherit the same vision, reaching up to heaven, such heavenly visions. Remember that. ये सारी चीज उसको याद दिलाता भी कहता है, तभी वो जलजलाहट के साथ उखाड़ कर भूमि पर गिराई गई है और उसके फल गुरुवाई हवा के लगने से सूख गए हैं और उसकी मोटी टहनियाँ टूट कर सूख पाई है और वे आग से भस्म हो गई है। अभी आपकी अवस्था देखो, पूरा जलाया गया है, सूख पड़ी है, ऐसी ऐसी शाखाएं, पहले यही झाड़ में था, वो राजदंड बनता था, अब देखो वो सब सूख गई है, जलकर भस्म हो चुकी है। ऐसा परमेश्वर का वचन कहते मेरी दुर्दशा का दुखा था, दिस इज माई प्लाइट नाउ, माई स्पिरिचुअल कंडीशन नाउ, ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ആയിപ്പോയല്ലോ, എന്റെ പിതാക്കന്മാർ എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി ജീവിച്ചു, അവർ ദൈവത്തിന്റെ പാദങ്ങളെ പിന്തുടർന്നു, അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു, അവരുടെ സന്തതികൾ ഭൂമി അവകാശമാക്കി, അവർ ഉന്നതമായ ദർശനം പ്രാപിച്ചു, അവർ ഉന്നതങ്ങളിൽ നടകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴോ കത്തിച്ചാമ്പലായ ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് വന്നു. അവരുടെ വൃക്ഷക്കൊമ്പുകൾ രാജാക്കന്മാരുടെ ചെങ്കോലായി മാറിയിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ അത് കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. समय प्रभु हमें छोड़ने पर नहीं है। हम 34वें अध्याय में आते हैं, we move on to 34th chapter of Ezekiel. So उसमें हम ऐसे पढ़ते हैं, उसका 26 से हम पढ़ते हैं कि 34वां अध्याय यहेजकेल का 26 से पढ़ते, मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। पिछले इतवार को हमने ये नहीं पढ़ा। और मेघ को मैं ठीक समय में वर्षाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। There shall be showers of blessings, says the Lord once again. मैं आशीष दूंगा, not only their accommodation, their places of stay, but even the surroundings. I will shower my blessings upon them. There shall be showers of blessing, not of curse, not of wrath, not the fire of my wrath, but the refreshing showers of my favor. കത്തിച്ചാമ്പലാക്കുന്ന എന്റെ ക്രോധത്തിന്റെ അഗ്നിയല്ല പിന്നെയോ, അരിഞ്ഞവർ പുറത്ത് പെയ്യുന്ന മഞ്ഞു പോലെ, സകലത്തിനെയും പുതുതായി ജീവിപ്പിക്കുന്ന മാരി പോലെ, മഴ പോലെ എന്റെ അനുഗ്രഹം അവരുടെ മേൽ പെയ്തിറങ്ങും. मैदान में फूलेंगे, हम पढ़ा था आज, अपनी उपज पाएंगे, उपजाएंगे और अपने देश में निडर रहेंगे। उसका 28 पढ़ते हैं, ये फिर जादी जादी से लूटे न जाएंगे और न हमारे पशु उन्हें फाड़ खाएंगे, वे निडर रहेंगे, उनको कोई न डराएगा। They shall no more be a prey to the nations. They shall not be a victim to the evil spirits or the powers of darkness. They shall never be torn apart, devoured by the beasts of the jungle. They shall dwell safely and securely. None shall make them afraid. कोई भी उसको डराएगा नहीं, जंगली पशु उसको फाड़ेगा नहीं, नहीं खाएगा, दुश्मन के वश में पड़े नहीं रहेगा, वो शैतान का गुलाम बनकर नहीं रहेगा। ये परमेश्वर की वाणी है। उसमें से आगे बढ़कर हम 36वां अध्याय से भी पढ़ते हैं, उसका 36वां अध्याय से 8 से हम पढ़ते हैं। फ्रॉम द वेरी बुक एसेकियल 36 चैप्टर, 36वां अध्याय 8 से पढ़ते हैं, 36 चैप्टर 8 ऑनवर्ड। परंतु हे इस्राएल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेंगी और उनके फल मेरी प्रजा इस्राएल के लिए लगेंगे, क्योंकि उसका लौट आना निकट है। हालेलुया। ओ ये माउंटेन्स ऑफ इस्राएल, you shall shoot forth your branches and yield your fruit to my people Israel.
For they shall soon come back. आने से पहले आहार तैयार होना है। हालेलुया। मैं बोले लौट आने पर है, लेकिन लौट के आएंगे और वो भूखा नहीं मरेंगे जब तक वो नहीं खेती करेंगे। हमें मैं उनके लिए सारे प्रबंध करना चाहता। When you come back, you will find the provisions ready. Oh, you second son, you come back. The banquet is getting ready. The dress is kept ready. The shoes are kept ready. Even a ring has been made. You come back, man. मैं लौटाऊंगा तुझे। लौटेगा तो वस्त्र तैयार मिलेगा, जूतियां तैयार है, अंगूठी बना कर रखा है, बड़ा भोजन का तैयारी है। हालेलुया, हालेलुया। ചെറിയ ബാലന്റെ പുത്രൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും അവന്റെ വസ്ത്രം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആമേൻ. വലിയ സദ്യക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവനുള്ള പാദരക്ഷ തയ്യാറാണ്. അവന്റെ മോതിരം ഇതാ പൂർണ്ണമായി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. आगे बढ़ता, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते बोए जाओगे. Behold, I am for you, not against you anymore. I will turn to you and you shall be tilled and sown. दोबारा खेती करोगे, दोबारा उपज मिलोगे तुमको. और कहता है कि और मैं तुझ पर बहुत मनुष्य अर्थात इस्राएल के सारे घराने को बसाऊंगा और नगर फिर बसाए और कंदहार फिर बनाए जाएंगे. I will multiply people in you and the whole house of Israel, all of it. The city shall be inhabited and the waste places rebuilt. I will multiply on you men and beast. They shall multiply and be fruitful. And I will cause you to be inhabited as in your former times, and will do more good to you than ever before. मैं तुझ पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत से बढ़ाऊंगा और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा. तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं. देखो मैं क्या करने पर हूं. अब मैं दुश्मन के ऊपर बदला लूंगा और मैं तुम्हारे बीच में वास कर स्थापित कर दिखाऊंगा कि मैं परमेश्वर हूं. हालेलुया. I am in the business of proving it once again who I am, that I am the only God. Hallelujah. I will restore you back. I will so bless you that you will increase, that you will prosper, and there won't be enough room for you. Hallelujah. बसाने के लिए मैं पृथ्वी को बनाया वैसे तुझको भी सृजाया. अब तुझ में जगह ही नहीं रहेगा, इतना मैं भर दूंगा. हालेलुया. इतना ही नहीं, तुम्हारी अवस्था प्राचीनों की अवस्था से बढ़कर होगी. शुरुआत में उसने कहा, रिमेंबर द फॉर्मर डेज एंड हाउ योर fathers walked in my footsteps and they were so blessed, and now I will bless you even more. Hallelujah. I will bless you even more. I will prosper you even more. Hallelujah. The latter glory is going to exceed the former glory by leaps and bounds. Hallelujah. പിന്നത്തെ മഹത്വം പഴയ മഹത്വത്തെക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടിയായി ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിന്റെ പിതാക്കന്മാർ പ്രാപിച്ച ദർശനത്തെക്കാൾ ഉന്നതമായ ദർശനം ഞാൻ നിനക്ക് നൽകും. അവർ പ്രാപിച്ച അനുഗ്രഹത്തെ വെല്ലുന്ന അനുഗ്രഹം ഞാൻ നിനക്ക് നൽകും. ഹല്ലേലൂയ. അവർ അനുഭവിച്ച സ്വർഗീയ സാന്നിധ്യത്തെ വെല്ലുന്ന സ്വർഗീയ സാന്നിധ്യം നീ അനുഭവിക്കും. जितना उन्होंने अनुभव किया था उससे बढ़कर मेरी संगति का आनंद तू उठाएगा. मुझसे ज्यादा आशीष तू पाएगा. उनको जो दर्शन मैंने दिखाया था, जो बात मैंने सिखाया था, उससे कई अधिक स्वर्गीय बात, such mysteries of heaven will be unfolded for you. Hallelujah. तुम्हारे सामने प्रकाशित किया जाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है. हमें अतिशीघ्र आगे बढ़ना है. हमें योएल का पुस्तक में जाना है. We look at the book of Joel chapter 2, दूसरा अध्याय का 23 से पढ़ते हैं. हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंदित हो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली बरस को भी बसाएगा. तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे.
जिन वर्षों की उपज अवे नामक टिड्डियां और येलेक और हासिल ने और गाजान नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसकी मैंने तुम्हारे बीच भेजा खाली थी, मैं उसकी खानी तुमको भर दूंगा। Hallelujah. I'm making restitution. I am more than compensating your losses, says the Lord. Amen. इसलिए तो आनंदित हो जा। Be glad, O children of Zion. Rejoice in the Lord your God. खुशी लौटाया जाएगा। आमेन। आनंद लौटाया जाएगा। उद्धार की आनंद से भरपूर हो जाओगे। आमेन। मनाओगे, खुशी मनाओगे। ऐसे में बारिश उंडेलेगा। I will pour down such abundant rain for you. The early rain and the latter rain, both will be given to you in ready measure, the right measure. Hallelujah. पहले बारिश और आखिरी बारिश सही मात्रा में मैं तुम्हारे ऊपर बरसाएगा। आमेन। And the threshing floors will be full of grain and the vats will overflow with wine. Hallelujah. इतने भंडार में भर भर के रखने के लिए इतना अनाज दिया जाएगा और इतना दाखमधु दिया जाएगा कि रस कुंड में जगह ही नहीं रहेगा। Your vats will overflow and I will restore to you the years that the swarming locust has eaten. जो नष्ट हुआ है वो सारे वर्षों के अनुसार मैं तुझे दोबारा लौटा दूंगा। हालेलुया। जिसको टिड्डियों ने खाया है, the grasshopper, the destroyer and the cutter and the great army of locusts have eaten, I will restore to you in many folds. कई मात्रा में, कई गुना मैं तुझे लौटाऊंगा। हालेलुया। God is not in the business of just restoring. God is not just in the business of prospering, but he is going to really give us much more, compensate much more. Hallelujah. बहुत ही ज्यादा हमें लौटाने पर है वो। ऐसे परमेश्वर का वचन के द्वारा, योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा वो हमें वचन देता। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त हो जाओगे और मेरे परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किया है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगा। You shall eat plenty and be satisfied. Hallelujah. And then you will praise the name of the Lord your God who has dealt wondrously with you, and my people shall never again be put to shame. Hallelujah. You will take a step or two like the younger son. Hallelujah. You will dance. Hallelujah. For the joy of restoration. Oh, hallelujah. You shall know that I am in the midst of Israel, that I am the Lord your God and there is none else, and my people shall never again be put to shame. तुम्हें पता चलोगे तो जानोगे कि इस्राएल के बीच में मैं हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। तेरे भीतर हो, तेरे साथ हो। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर मैं हूँ। आमेन। दुश्मन के हर तरह की बंधुआई से तुमको मैंने छुड़ाया है। I have really delivered you forever from the clutches of the evil one, from the shackles of the enemy. You are free indeed because the Son has set you free. പുത്രൻ നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി സ്വതന്ത്രരായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇനി അടിമനുഖത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളെ പുഴുവും തുള്ളനും വെട്ടുകിളിയും നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞതിനൊത്തവണ്ണം ഞാൻ ധാരാളമായി നിങ്ങൾക്ക് പകരം നൽകും. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും സ്തുതികളോട് സ്തോത്രത്തോടും കൂടെ എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആനന്ദിക്കും. വിളിച്ചു പറയും, ഇവൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം, ഇവനെ എത്രയും നാം കാത്തിരുന്നത്. It shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all the flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Even on the male and the female servants, on those days I will pour out my spirit. Hallelujah. वो कहते इतना ही नहीं, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेल दूंगा. तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, वो तुम्हारे पुरानियां स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे. तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा. मैं आकाश में और पृथ्वी पर भी चमत्कार दिखाएगा. हाँ, प्रभु कहता है उन दिन आ रहा है. ये सिर्फ भोजन खिलाने वाली बात नहीं है, या तो ऊंचाई की स्वर्गीय बात है. हालेलुया. तुम्हारे संतान भी ऐसे पाएंगे. हालेलुया. जलपाई के वृक्ष के समान, जैतून के वृक्ष के समान तुम्हारे मेज के चारों ओर बैठकर वो लोग वचन को अपनाएंगे, वचन सिखाने वाले हो जाएंगे. वो लोग आशीष से भरपूर होकर रहेंगे. Even your children as olive trees around your table, as आपके
ऐसे संतान भी, they will learn from you, they will learn the word of the Lord, and they will go and preach and share the word. Hallelujah, hallelujah. They shall be so anointed, your daughters will be so anointed and fruitful. Hallelujah. तेरे संतान भी ऐसे अभिषेक पाएंगे. Hallelujah, hallelujah. प्रभु कहते हैं यह सिर्फ एक भौतिक बात नहीं है, यह आत्मिक बात है. इतना ही नहीं है, जैसे हमको पहले सुनाया गया, जानवर लोग भी, नौकर लोग भी पाएंगे. जितने भी लोग तेरे पास आते वे भी ये आशीष पाएगा. सिर्फ भौतिक आशीष नहीं है, आत्मिक आशीष बहुत से पाएगा. Even the old man will not be left out. Old women will not be left out. Amen. बूढ़े भी नहीं छोड़ दिया जाएगा. एक साथ आशीषित बने रहेंगे, अभिषिक्त बने रहेंगे, स्वर्गीय भेदों को समझेंगे. Heavenly mysteries will be revealed to them through the word. The word will be revealed to them again and again. Hallelujah. They shall be so fed from heaven that everyone will be fruitful. Hallelujah. നിന്റെ ദാസന്മാരും ദാസിമാരും നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ മക്കളും മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒലിവ് തൈക്കളെ പോലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് ദൈവവചനത്താൽ നിറഞ്ഞ് അഭിഷേകത്താൽ നിറഞ്ഞ് അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമായി നിൽക്കും. സ്വർഗീയ രഹസ്യങ്ങളെ വചനത്തിൽ കൂടി അവർ ഗ്രഹിക്കും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ. हम उसका तीसरे अध्याय का 18 वचन पढ़ता. सॉरी, हम योएल का अध्याय का 18 वचन. उस समय पहाड़ों से नया दाखमधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा. यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे और यहोवा का भवन में से एक सोता फुट निकलेगा जिससे शित्तीम की घाटी सींची जाएगी. And in that day the mountains shall drip sweet wine and the hills shall flow with milk, and all the streambeds of Judah shall flow with water, and a fountain shall come forth from the house of the Lord and water the valley of Shittim. What a blessing. Not only you will prosper, but there will be an overflow of blessing. अब होता ऐसे फूलेंगे, फलेंगे, फलवंत होंगे, बढ़ेंगे, इतना ही नहीं है, बस बढ़ते रहेगा. आशीष की नदियां बहेंगी. श्रापित देश को भी आशीषित करने वाली नदियां वहां से बहेंगी. अब अनुग्रह का स्रोत बने रहेंगे. There will be rivers of blessing flowing out to the church, and the church will become a spring of blessing on the parched land that is our world. इस जगत में हालेलुया यीशु की भूमि पर अनुग्रह की नदियां फूट निकलने वाली स्रोत बनेंगे. कलीसिया, that is the blessed things for which he restored us. He created us anew that we may be fruitful and we may keep on increasing. इसलिए प्रभु ने हमें नए सिरे से सृजाया ताकि हम फूलेंगे, फलेंगे और बढ़ते रहेंगे. हम उसका अगला पुस्तक आमोस में भी नजर डालता कि आमोस का पुस्तक 9 अध्याय 11 से पढ़ता है. उस समय में दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा, उसको बाड़े के नाखों को सुधारूंगा और उसके कंडहारों को फिर बनाऊंगा. जैसा वो प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा, जिससे वो बचे हुए दोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती हैं अपने अधिकार में ले लेंगे. यहोवा जो ये काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है. यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रौदने वाला बीज बोने वाले को जालेगा और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा. In that day I will raise up the booth of David that is fallen, repair its breaches and raise up its ruins and rebuild it as in the days of old. He will start building us up again. The church is being perfected. We will be the co-builders with him, co-laborers with him, and we will also remain part of the building
part of the house of God as living stones built together with the cornerstone. Hallelujah. हम बांधा जाएगा, कंडहारों से दोबारा खड़ा किया जाएगा, हम उसके सहकर्मी बनकर उसके साथ मिलकर बांधेंगे और हम भी उसका भाग बनेंगे. जीवता पत्थर सा कोने के सिरे के पत्थर के साथ जोड़ दिया जाएगा. അവൻ വീണ്ടും പണിയും. നമ്മുടെ ശൂന്യ കുംഭാരങ്ങളെ അവൻ പണിതുയർത്തും. നാം അവനോട് ചേർന്ന് പണിയും. നാമും ആ ഭവനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരും. ജീവനുള്ള കല്ലുകളെ പോലെ മൂലക്കല്ലായി തീർന്നവനോട് ചേർന്ന് പണിയപ്പെടുമ്പോൾ. हालेलुया. कितना सुंदर वचन है. और वो कहते इतना ही नहीं है. Behold, the days are coming. 13th verse declares the Lord, when the plowman will overtake the reaper, and the treader of grapes will grapes him who sows the seed. The mountain shall drip sweet wine, and all the hills shall flow with it. Amen. No sooner you sow, than you will reap. Amen. बोते बोते तू फसल काटोगे. Amen. बोने से पहले फसल तैयार हो जाएगा. Amen. Before I could even sow, I will be reaping. प्रभु कहता, the plowman will overtake the reaper, and the treader of grapes will overtake the one who sows the seed. दाखलेदा लगाने से पहले से दाख मधु टपकने लगेगा. Hallelujah. I will be so fruitful that there won't be any delay in reaping. Hallelujah. फसल काटने में देरी नहीं होगी, कुछ भी नष्ट नहीं होगा. इतना ही नहीं, उसका पहले का वचन में कहते हैं तो अधिकार हाथ में लोगे, दुश्मन के ऊपर हुक्म चलाओगे. हालेलुया. हर तरह की अंधकार की शक्तियों के ऊपर, शैतान के ऊपर तो प्रबल होते जाओगे. ऐसे परमेश्वर का वचन कहता. समय सीमित होने के कारण हम वहां से आगे बढ़कर हम जकरिया भविष्य तक का पुस्तक में नजर डालते हैं. 8वां अध्याय का 11-12 पढ़ते हैं. We move on to the book of Zechariah, 8th chapter, 11 and 12. परंतु अब मैं इस प्रजा के बच्चे हुओं से ऐसा बर्ताव न करूंगा जैसा कि पहले के दिनों में करता था. सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है. क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी उपज बुझाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेगी. क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी कर दूंगा. यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तो जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होंगे. इसलिए तुम मत डरो और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए. But now I will not deal with the remnant of his people as in the former days, declares the Lord. जो भी बची हुई है उसके साथ में क्रोध से व्यवहार न करूंगा. We have lost a lot, we have forfeited a lot, but the Lord says, I am in the business of rebuilding. प्रभु कहते मैं दोबारा बनाऊंगा. The remnant will be built up again, says the Lord. And now your counselor, your teacher will not remain hidden. अब तेरा उपदेशक छिपी नहीं रहेगा, जिन्हें जमाने की तरह नहीं होगा. आमेन. अभी दाखलता फूलेगा फलेगा, and the ground will give its produce in plenty. इसलिए कि मैं आसमान से ओस बरसाएगा. Because I will cause dew from heaven to fall. स्वर्गीय ओस में बरसाऊंगा, जिसके कारण रात को भी वो सींचा जाएगा. Even during the dark days and the days of drought, they will be watered because of the heavenly dew. इसलिए कहते हैं, you were a curse among the nations and now you will be a source of blessing. परमेश्वर को मुंह से ही सुन लें. अबे और परमेश्वर यहोवा स्वयं कहता, you will be a source of blessing. कहते तो पहले श्राप का कारण था, लोग दुखते थे, लेकिन अब तुम्हारा उद्धार में करने के बाद तुम आशीष के कारण होंगे. मत डरो, मत डरो, मत डरो. कहते डरना नहीं, तुम्हें भी आशीष का कारण बन चुके हैं. अब जूना नियम से बाहर निकलने से पहले मलाकी में नजर डालते हैं. मलाकी चैप्टर 3 10 से 12 तक हम पढ़ते हैं. सारे देश मांस भंडार में ले आओ कि
मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे की वर्षा करता हूं कि नहीं, झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा के यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. वो कहते स्वर्ग की तिजोरी खोल कर मैं अनुग्रह बरसाने पर है। तो भेंट लेकर आना। कैसा लेकर आने वाली बात नहीं है। पिछले अनेक दिनों में प्रभु ने हमें यह समझाया। वैसे भेंट से प्रसन्न नहीं होता। जो मेरा हृदय का कत्थना कर अपने आप को समर्पित कर पश्चाताप के साथ धन्यवाद से भरी हृदय से मैं आता, तब वो प्रसन्न होता। He's not talking about money. He's talking about you and me approaching the throne of grace to worship Him, to offer ourselves unconditionally, with our hearts circumcised, entering into a new consecration and commitment. ऐसा करोगे तो कहता, I will open the reservoirs of heaven, the treasuries of heaven, and I'll shower upon you blessings upon blessing. Hallelujah. इतना मैं बरसाऊंगा कि जगह नहीं होगा आपके पास। इतना सब सारे जाति के लोग मानोगे कि तुम लोग परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर तुझसे प्रसन्न है और परमेश्वर से आशीष पाए हुए लोग हैं। Then all the nations will call you blessed, for you will be a land of delight, says the Lord. तो ऐसा मनोहर देश बनेगा, मेरा जीवन ऐसा बनेगा। हम नया नियम में नजर डालने से पहले पवित्र शास्त्र हमें ये वचन देता, हमसे ये वायदा करता, हम ऐसा बनाया जाएगा, हमारा परिवार ऐसा बनेगा और हमारा कलीसिया ऐसा बन जाएगा। उसके लिए हमें प्रभु का अनुग्रह ही चाहिए, ऊपर की ओस चाहिए। इसलिए परमेश्वर का दास ऐसे गाते हैं, मैं तुझको चाहता हूँ प्रभु, तू मुझको काफी है यीशु, तेरी स्तुति करूं, आराधना करूं, वंदना करूं, तू मुझको काफी है प्रभु। मैं तुझको चाहता हूँ प्रभु, तू मुझको काफी है यीशु। माँ के गर्भ से तूने चुन लिया मुझको प्रभु, बाप के समान तूने उठा के ले आया। अब तक पिता और माता तू है, मेरे लिए काफी है यीशु, तेरी स्तुति करूं, आराधना करूं, वंदना करूं, तू मुझको काफी है प्रभु। मैं तुझको चाहता हूँ प्रभु, तू मुझको काफी है यीशु। प्रभु कहता, मैं करूंगा, वही काफी, उसकी कृपा काफी है, स्वर्गीय ओस काफी है। He is all what we need. His grace is all what we need. His heavenly dew is all what we need. His empowering is all what we need. നമുക്ക് അവൻ മതി, നമുക്ക് അവന്റെ കൃപ മതി, നമുക്ക് സ്വർഗീയ മഞ്ഞ് മതി, നമുക്ക് അവന്റെ ബലം मदी। हम अब नया नियम में जाते हैं, मत्ती के सुसमाचार से शुरू करते हैं
So in Matthew chapter 5 verses 14 to 16, 5वां अध्याय से 14 से पढ़ते हैं, तो जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. पहाड़ के ऊपर आहार है, पहाड़ के ऊपर का ज्योति तुम हो, सब प्रभु कहते हैं. You are the light on the mountain top. And there will be food. There will be enough grain on the mountain. Amen. That people may be fed. That your children may be fed. That your generation will be fed. And there will be enough reserves for the generations to come. पहाड़ के ऊपर की ज्योति हो, पहाड़ के ऊपर बहुत आहार होगा. तुम्हारे लिए होगा, परिवार के लिए होगा, कलीसिया के लिए होगा, भूखों के लिए होगा, जितने भी भूखे हैं उनके लिए होगा, तुम्हारे पीढ़ी के लिए होगी, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ऐसे होगा. तो ऐसा दीवट हो, लोग दिए जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखता है, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है. People do not light a lamp and put it under the basket, not on a but on a stand, and it gives light to all in the house. Hallelujah. तो ज्योतिर्मय हो जाओगे. अभी हमें पता चलता सिर्फ गेहूं की बात नहीं करता था, बार्ली का बात नहीं करता था. He's talking about much higher stuff. Hallelujah. बहुत ही ऊंचाई की बात करता, बहुत महंगा चीजों के अनुग्रह का बात करता. तो ऐसे ज्योति हो, जिस ज्योति से सृष्टि होती है, जिस ज्योति से जीवन दिया जाता है. The light that creates, the light that gives life, imparts life and hope and a future. Hallelujah. നീ ആ വെളിച്ചമത്രേ. ഇത് ഗോതമ്പ് മരിയും അല്ല ദൈവം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് മലമേൽ പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്കത്രേ. അവിടെ എത്ര ആഹാരമുള്ളത് നിനക്ക് വേണ്ടി, കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി, വിശക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം ആഹാരം, ധാരാളം പ്രകാശം, സ്വർഗീയ വെളിച്ചം. പർവ്വത മുകളിൽ വെച്ച പട്ടണം പോലെയോ തണ്ടിന്മേൽ വെച്ച വിളക്ക് പോലെയോ നീ ശോഭിക്കണം. तुम हो वो ज्योति, जलाया गया दीपक तुम हो, तो कटिया के नीचे नहीं रखाया जाता. हालेलुया. तुम्हारे उजियाल सारे लोगों के सामने प्रकट हो जाए, प्रकाशित किए जाए, चमकते जाए, इसके लिए ऊंचाई में रखा गया पुरुष है. हम तराई के जीवन नहीं बिताएंगे. वी आर नॉट पीपल ऑफ the valleys. We are people of the mountain. Hallelujah. We will not think like people of the valleys think. ये जगत के लोग जैसे सोचते हैं इसे हम नहीं सोचते हैं. ഈ ലോക മനുഷ്യരെ പോലെ നാം ചിന്തിക്കുകയില്ല. നാം താഴ്വരയിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവരല്ല, നാം ഉന്നതികളിൽ നടകൊള്ളുന്നവരത്രേ. हालेलुया. हम ऊंचाई के लिए बुलाए गए लोग हैं. हम ये जगत के लोगों की तरह ऐसे नीचे तौर के सोच नहीं सोचेंगे, ऐसे नीचे तौर के जिंदगी नहीं बिताएंगे. हम स्वर्गीय जीवन बिताएंगे ताकि हमारी ज्योति चमक के जाए, जिसके कारण स्वर्ग आनंदित हो जाए और परमेश्वर महिमा पाए. हालेलुया. Let your light so shine before others that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Amen. हम फलवंत होंगे, हमें फल दिखाई देगा. Good works will be the fruit that the world will see in us. Hallelujah. अनुग्रह का फल, पवित्र आत्मा का फल मुझ में और आप में दिखाई देंगे. वो है स्वर्गीय ज्योति. उसके कारण पिता परमेश्वर अति प्रसन्न होगा. वहां से बढ़कर वही सुसमाचार के 13 अध्याय में से एक दो वचन पढ़ते हैं. 13 chapter से in Matthew 7 and 8. कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना. Some seeds fell among thorns. The thorns grew up and choked them. Other seeds fell on good soil and produced grain. Some 100-fold, some 60, some 30. कहते कुछ बीज बोझा तो जरूर गया था, लेकिन वो कांटों के बीच में गिरा. Some of them were sown among the thorns. उसके पहले जो बताया, रास्ते में जो गिरा, चट्टान पे जो गिरा, वो सब हम नहीं पढ़ता. वो कलीसिया के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है. वो
The seeds that fell along the road and that which fell on the rock, we do not even read them because they do not relate to us. वो कलीसिया के लिए नहीं, it's not for the church. लेकिन वो कहता है, there is a possibility that some seeds may get choked up by the cares and worries of this world. Hallelujah. चेतावनी मिलता है, संभव है कलीसिया में और मेरे जीवन में कि कुछ ऐसा बीज होंगे, बहुतायत का फल लाने के लिए भेज दिया गया बीज है। परमेश्वर का वचन में कहता है, बोने वाले के लिए बीज वो देता, पढ़ने कहता है मुझे वो वचन भी, बोने वाले के लिए बीज वही देता और खाने के लिए आहार वही देता। He is the one who gives seed to the sower and food to us for eating. कहता है वही देता है, वचन की कोई कमियापन नहीं है। There was nothing lacking in the seed, but they were not received right. Though they were received right, we allowed them to get choked later because of the cares and worries of this world. വചനം ശരിയായി നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടു, ശരിയായി നാം സ്വീകരിച്ചു, എന്നിട്ടും ഈ ലോകം അതിനെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞു. ഈ ലോകം അതിനെ ഞെരുക്കുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. The world and the worldly things and the worldly pleasures and the worldly priorities may never crush this plant, this tree. वचन सही है, बीज सही था, सही रीति से बोया गया, लेकिन कांटे बढ़कर इस संसार आ गया, घुस गया, संसार घुस गया, संसार के आकर्षण, संसार के विचार, संसार की सोच, संसार की प्राथमिकता आकर उसको ऐसे दबा दिया, अच्छी तरह फलवद नहीं हुआ। लेकिन सही जमीन पर बोया गया वचन है, वो बहुत ऐसे फलवंत होगा। प्रभु 30, 60 और 100 गुना नहीं कहता, वो पहले 100 गुना से शुरू करता, उसकी प्रतीक्षा वो है। He doesn't say 30-fold, 60-fold and 100-fold. He starts with 100-fold. That is what He desires of each one of us. If not 60, if not a 30, no. We are heading for 100%. We are aiming at 100%. 100 മേനി വിളയണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് 100 മേനി അവൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മിൽ വിളയട്ടെ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനായി അവൻ ഈ ഭൂമിയെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും അതിനായി അവൻ വീണ്ടും അവൻ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. उसने दोबारा तैयार किया ये जमीन को, उसने ये जमीन को दोबारा तैयार किया है, उसने उसका ओस उंडेल दिया है, उसका आशीष बरसाया है। इसलिए वही अध्याय में हम पढ़ते हैं 23वां वचन ऐसा है, जो अच्छी भूमि पे बोया गया वो ये है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना। As for what was sown on good soil, 23rd verse of same chapter 13. This is the one who hears the word and understands it. He indeed bears fruit and yields 100-fold. ये ऐसा लोग है जो वचन को स्वीकारता, ग्रहण करता, सिर्फ सुनता नहीं। सुनते हम सब, मैं भी सुनता, मैं उसको ग्रहण करता, लेकिन उसका आधार पर नहीं चलता, उसको बढ़ने नहीं देता, फूलने नहीं देता, फलने नहीं देता। Even I receive the word, but I do not live by it. I do not let the word grow and thrive and blossom and bear much fruit in me, but I allow the world to crush it. അവൻ എന്നെ തയ്യാറാക്കി, ഈ വചനം എന്നിൽ വളരട്ടെ. ലോകം അതിനെ ഞെരുക്കുവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല, ദുഷ്ടനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല, ചെറുകുറുക്കന്മാർ കടന്നു വരുവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. I will not let the little foxes in. I will not let the world to crush it and destroy it. संसार उसको नाश करने नहीं दूंगा, मैं लोमड़ियों को घुसने में नहीं दूंगा, मैं फलवंत दूंगा यीशु की कृपा से। प्रभु कहता मेरी सहायता तुम्हें मिलता रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार में चले जाता। We move on to Gospel according to Saint John. यूहन्ना का सुसमाचार का 15 अध्याय में से हम पढ़ते हैं 15 chapter. We start from the first verse. सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है,
जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे मैं काट डालता, जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो फले। आई एम द ट्रू वाइन, माई फादर इज द वाइन ड्रेसर। Every branch that is in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that does bear fruit, he prunes that it may bear much fruit. मैं दाखलता और मेरा स्वर्गीय परमेश्वर पिताजी किसान है। हालेलुया, वो किसान, he knows his job. The vine dresser knows his job. The gardener knows his job. And he does it pretty well. If I would only obey and submit. मैं अपने आप को नम्र कर आज्ञा पालन करूंगा तो ये किसान सही काम करेगा मेरे साथ। हालेलुया। उसने जो दाखलता को लगाया उसको देखो। Look at the true vine which was planted by this husbandman. Hallelujah. This farmer who knows his job very well. वैसा मैं भी बनूंगा। Looking unto Jesus, even I'll be like him. I'll be fruitful. अगर वो कुछ ताड़ना देता है वो मुझे और फलवंत बनाने के लिए, अगर वो मुझको चाटता है मुझे अधिक फलवंत बनाने के लिए। If he prunes, it's a good sign. I'll bear much more fruit. He's pruning it because I'm capable of bearing fruit. Hallelujah. ഫലം കഴിപ്പാൻ എനിക്ക് കഴിവുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് അവൻ എന്നെ ചെത്തിവെടിപ്പാക്കുന്നു, ഞാൻ അധികം ഫലം കഴിക്കേണ്ടതെന്ന്। हम एक एक वचन पढ़ेंगे, 5 वचन पढ़ता। मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो। Now he is expanding the thought. He says, not only that I am the true vine, you are the branches. Hallelujah. इतना ही नहीं है कि मैं सच्चा दाखलता हूं और पिता परमेश्वर किसान है, इतना ही नहीं है, तुम डालिया हो। मुझ में बने रहोगे तो बहुत फलवंत हो गया। You don't have to put in hard work and a lot of efforts. If you choose to abide in me, you will bear much fruit. And apart from me, you can do nothing. तुम बहुत फलवंत होगे, मुझ में बने रहोगे तुम, और मुझसे अलग होकर तो कुछ भी नहीं कर सकते। परिश्रम नहीं करना, मैं नहीं करूंगा। तुझसे अलग होकर मैं परिश्रम नहीं करूंगा, खुद का रास्ता नहीं ढूंढ लूंगा। तूने कहा दाहिने भाग या बाएं भाग मुड़ना, मैं तुझे घुमाऊंगा। I will not choose my way. I will not do it all by myself. I will obey, trust and obey. आश्रय रखकर मैं बने रहूंगा, आज्ञा पालन करूंगा, तुझ में बने रहूंगा। You will call the shots. You will rule over me. You will guide me. You will reign in me. तू मुझ में राज करोगे। हालेलुया। उसके बाद वो कहता फलवंत होने के लिए यही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है। 8वां वचन कहते हैं मेरा पिता की महिमा इसी से होती है, तो बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. ये मेरा आग्रह है, तो चेला बनोगे। चेला बनना, मुझ में बना रहना। मुझ में बने रहोगे तो अधिक फलवंत होंगे, अधिक फलवंत होगे तो पिता परमेश्वर प्रसन्न होगा। I have called you to be my disciples, and you are supposed to make disciples of many. If you become my disciple, you'll abide in me. If you abide in me, you'll bear much fruit. When you bear much fruit, Father in heaven will be delighted and will be glorified. ശിഷ്യന്മാരാകാൻ അത്ര ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചത്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കും. നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം ഫലം കായ്ക്കും. അനേകരെ നിങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരാക്കും. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ധാരാളം ഫലം കായ്ക്കുമ്പോൾ സ്വർഗീയ പിതാവ് സന്തോഷിക്കും, അവൻ महत्वമെടുക്കും. उसके बाद हम पढ़ते हैं उसका 16वां वचन में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त भी किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। You did not choose me, I chose you and I appointed you that you should go and bear fruit
and that your fruit should abide. Hallelujah. तूने मुझे नहीं चुना. You could not have chosen me also. You're not right. You don't deserve to choose me. तू मुझको नहीं चुन सकता था. तुझमें कोई योग्यता नहीं रहा. मैंने तुझे चुन लिया और मैंने तुझे नियुक्त किया, अधिक फलवंत होने के लिए नियुक्त किया. इतना ही नहीं तो फलवंत होंगे, तुम्हारा फल तुझ में बने रहोगे. A steadfast spirit in me, O Lord. Not only you will be fruitful, says the Lord, your fruit will remain. Hallelujah. It won't be for a day or two. It won't be for the initial years, amen, of your Christian walk. It will be forever. It will follow you to eternity. Your fruits will follow you to eternity. നിന്റെ ഫലം നിലനിൽക്കും. ചില സമയത്തേക്കല്ല, ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫലം മാത്രമല്ല. ആമേൻ. നീ ഇനിയും പൂക്കും, നീ ഇനിയും പുഷ്പിക്കും, നീ ഇനിയും ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും. നിന്റെ ഫലം നിലനിൽക്കും, നിത്യതയോളം നിലനിൽക്കും. हालेलुया. को आरंभ के समय में ही नहीं है. तू फूलेंगे, फलेंगे और बहुत फल लाते ही रहेंगे. और तेरा फल कुछ दिन के लिए नहीं है, तुम्हारा फल बने रहेगा स्वर्ग तक, उस किनारे तक तेरा फल तुम्हारे पीछे करते रहेगा. हालेलुया. हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, जो मनोहर वस्त्र जो पहनते वो लोग, वह ये फल को दिखाता है. हालेलुया. ये फल वहां तक बने रहेगा, उसके लिए प्रभु में हम बने रहते हैं. वहां से बढ़कर हम रोमियों में नजर डालते हैं. हम रोमियों का पुस्तक पत्रिका 12 अध्याय से 6 से पढ़ते हैं. रोमन्स चैप्टर 12 6 ऑनवर्ड. क्योंकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं. तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे, परिमाण के अनुसार. यदि सेवा करने का दान मिले हो तो सेवा में लगा रहा. यदि कोई सिखाने वाले हो तो सिखाने में लगा रहो. जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहो. दान देने वाला द्वारदा से दे और अगुवाई करे, वो उत्साह से करे. जो दया करे वो हर्ष से करे. कहता है, having gifts that differ according to the grace given to us, let's use them. That is the way to be fruitful, using our gifts. In prophecy in proportion to our faith, in service in our serving, the one who teaches in his teaching, the one who exhorts in his exhortation, the one who contributes in generosity, the one who leads with zeal, the one who does acts of mercy with cheerfulness. कहते हमें फलवंत होते रहना है. जो वचन सुनाता, जो भाषण देता, वैसे आत्मिक अभिषेक से देता. जो शिक्षा देता, ऐसे उत्साह से सही उपदेश सिखाता. जो सेवा करता, ऐसे नम्रता से सेवा करता, पूरे दिल से सेवा करता. ऐसा कहता. और कहता जो उपदेशक है, ऐसे सलाह देता, परमेश्वर से पाकर देता, सुनाता. जो ऐसे सहायता करता, बड़ी उदारता से करे. जो लोगों को अगुवाई देता, वो ऐसे उत्साह से परमेश्वर के संग चलकर अगुवाई देते रहे. This is what God desires of us. He wants each one of us to be fruitful, not just one or two. इसलिए हर एक को उसने तालंत दिया है. എല്ലാവർക്കും അവൻ ഓരോ ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസംഗിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് പ്രസംഗിക്കട്ടെ. ഉപദേശിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ വചനപ്രകാരം ഉപദേശിക്കട്ടെ. പഠിപ്പിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ ശരിയായ സത്യത്തെ പഠിപ്പിക്കട്ടെ. വഴി നടത്തുന്നവനാണെങ്കിൽ ദൈവവചനപ്രകാരം ദൈവാത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പ് പ്രകാരം ജനത്തെ വഴി നടത്തട്ടെ. സഹായം ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് ദയോടെ ചെയ്യട്ടെ. ऐसे हर एक व्यक्ति फलवंत होकर रहना चाहिए, ऐसा प्रभु चाहता है. ये सिर्फ जो अनाज काटने वाली बात नहीं है. दिस इज नॉट अबाउट रीपिंग wheat or rice. It's all about spiritual fruit bearing. Hallelujah. ആത്മീക ഫലങ്ങളെ കൊണ്ട് സഭ നിറയട്ടെ. സഭയത്രേ അവന്റെ തോട്ടം.
എന്റെ കുടുംബോത്രേ അവന്റെ തോട്ടം. അതുകൊണ്ട് എത്ര അവൻ പറഞ്ഞത്, നിന്റെ ഭാര്യ മുന്തിരിവള്ളിയെ പോലെ, ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മുന്തിരിവള്ളിയെ പോലെ. അതുകൊണ്ട് എത്ര അവൻ പറഞ്ഞത്, നിന്റെ മക്കൾ ഒലിവ് തൈക്കളെ പോലെ. ആമേൻ. ये परमेश्वर का बगीचा है, भारी है. My family is his garden. My children will be like olive plants round about my table. My wife will be like a fruitful vine. The church of God is his garden. My church will be flooded with people who are fruitful and contributing. എന്റെ ഭവനമത്രേ അവന്റെ തോട്ടം. എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഈ തോട്ടത്തിലുള്ളവരത്രേ. അവർ ഫലഭൂയിഷ്ടിയായി ഉള്ളവരായി തീരും. എന്റെ സഭയത്രേ അവന്റെ തോട്ടം. ഇത് സുഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഫലങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞ തോട്ടമായി തീരും. ഹല്ലേലൂയ. ധാരാളം ഫലം, സ്വാദിഷ്ടമായ ഫലം, സുഗന്ധം വമിക്കുന്ന തോട്ടമായി ദൈവത്തിന്റെ സഭ തീരട്ടെ. मेरे परिवार इसकी कलीसिया है. इसके लिए मेरी बीवी, मेरे संतान, मेरी बीवी तो ऐसे दाखलता जो फलवंत है. मेरे संतान मेरे बेस के चारों ओर, मेरे हाथ के नीचे परमेश्वर के आत्मा के अधीन फलवंत होते रहेंगे. इतना ही नहीं, कलीसिया उसकी बारी है, वो किसान है. कलीसिया फलवंत होगी. बहुत स्वादिष्ट फल, बहुत सुंदर फल, बहुत खुशबू उगते रहेगा ये कलीसिया से. ये भी उसकी बारी है. हम आगे बढ़ते हैं. हम शीघ्र गति से एक एक वचन पढ़ने का प्रयास करते हैं. भले गलातियों में नजर डालता. गलातियों की पत्रिका से 5वां अध्याय से हमें 3 वचन पढ़ना, 22 to 24. गलातियों 5वां अध्याय 22 से पढ़ता. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है. ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है. Hallelujah. But the fruit of the Spirit is love, which contains joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. वो स्पष्टता से कहता है. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषों को समेत क्रूस पर चढ़ा लिया है. अभी कांटे आकर उसको दबाएगा नहीं. हम जगत को, संसार को क्रूस पर चढ़ाया है. The worldly thoughts, the worldly priorities, the worldly desires, the worldly pleasures will never crush this wine. ये जाड़ को अभी दुनिया नहीं दबाएगा. हालेलुया. दुनियादारी नहीं दबाएगा. संसार की आकर्षण हो, उसकी धोखाबाजी हो, नहीं दबाएगा. संसार की रीति आकर, उसका विचार आकर मेरे फल को मुझसे छीन नहीं लेगा. ഇനി ലോകം ഇതിനെ ഞെരുക്കി കളയുകയില്ല. ഞാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ വികാരങ്ങളോടും, ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ആകർഷണത്തോടും, ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ വശീകരണത്തോടും കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇത് മുള്ളുകളാൽ ഞെരിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഇത് ഫലം കഴിക്കാതെ വരികയില്ല. ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളെ അത് പുറപ്പെടുവിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, വിശ്വസ്തത, ഇന്ദ്രിയജയം, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള അത്ഭുത ഫലങ്ങളെ, നിലനിൽക്കുന്ന ഫലങ്ങളെ അത് പുറപ്പെടുവിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ये फल बने रहेगा. ये आत्मिक फल है. These are the spiritual fruit. Amen. The compound fruit called love, which produces in turn all other gifts, all other fruit, and that will remain. प्रभु ने कहा that you may bear fruit and your fruit may remain, and these fruit will remain. ये फल बने रहेगा. ऐसा पवित्र शास्त्र हमें वचन देता है. हमें फिलिपियों में से भी पढ़ना है. फिलिपियों का पहला अध्याय 9 से हम पढ़ते हैं, 9 से 11 तक पढ़ता है. फिलिपियंस चैप्टर 1 9 to 11 हम पढ़ते हैं. मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ते जाए, यहां तक कि
तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। Now the Holy Spirit is explaining it and revealing it in the spiritual light. My prayer is that your love may abound more and more with knowledge and all discernment, so that you may approve what is excellent, and so be pure and blameless for the day of Christ. ऐसे वो प्रार्थना करता है कि हम ज्ञान में बढ़ते जाए, पहचान में बढ़ते जाए परमेश्वर की पहचान में, वचन की जानकारी में हम बढ़ते जाए और हमें विवेक आए, ऐसे विवेक को हम पाए, that we may grow in His word and in the understanding of it, that we may receive the spirit of discernment, that we will only approve that is excellent. We will not settle down for the common stuff. हम साधारण चीज को नहीं स्वीकारेगा, हम ऊंचाई के बात को स्वीकारेगा, हम स्वर्गीय बात को स्वीकारेगा, हम अगुवाई के अनुसार स्वीकारेगा। हालेलुया। उत्तम से उत्तम बातों से हम प्रीति रखेंगे और वो मसीह के दिन तक बने रहेंगे। We will be kept safe and pure and blameless for the day of Christ. यीशु क्रिस्त के आगमन तक हमारा फल बने रहेगा। हालेलुया। हम सच्चे बने रहेंगे, हम ठोकर नहीं खाएंगे, और उस धार्मिकता के फल से यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, that we will be filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ. Amen. वो दाखलता है, He is the true vine. We, the branches, will continue to abide in Him. So He will bear fruit through these branches that we are. Amen. അവനത്രേ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളി, നാം അവനിൽ വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവനത്രേ ഫലം കായ്ക്കുന്നത്, എന്നാൽ നാം ആകുന്ന ശാഖയിൽ കൂടെ അത്രേ ആ ഫലം ലോകം കാണുന്നത്. The world will see His fruit through these branches. Hallelujah. वो फलवंत होगा, वही दाखलता है, हमें वो अधिकार से बहुतायत से फलवंत होते रहेगा, और उसका फल ये शाखाओं के द्वारा दिखाई देगा। वो शाखाएं हम हैं जो हम उसमें बने रहते हैं, and that will be to the praise and glory of God. वो परमेश्वर की स्तुति के कारण बनेगा, पिता परमेश्वर अधिक महिमा पाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम वहां से जाकर कुलुसियों में नजर डालता हम। We look into the letter to the Colossians, पहला अध्याय से पढ़ते 9 से 11 तक पढ़ते हैं। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ता कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। We have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will and His all spiritual wisdom and understanding. Colossians 1:9. That you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, कहता है वो। आमेन। ऐसा नहीं है कुछ आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें, आत्मिक ज्ञान और समझ में पूर्णता पाओगे, उसकी इच्छा को पूर्णता में पहचानोगे। You will know His perfect will in all its fullness without a shadow of doubt. Hallelujah. Hallelujah. No shadow of turning. He will reveal His perfect will to you, and you will grow in the knowledge of His perfect will. Hallelujah. वो हमें प्रकाशित करके देगा, उसकी इच्छा को पूर्णता में हम जानेंगे, और उसको इच्छा के अनुसार हम आत्मिक वृद्धि पाते रहेंगे, प्रगति पाते रहेंगे और परिपूर्ण होते जाओगे। You will grow to perfection. कहते ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, so as to walk in a manner worthy of the Lord. दुनिया वाले के तरह नहीं, संसार की रीति से नहीं, उसे हट कर हम चलेंगे। आमीन। फारसी लोगों की धार्मिकता से हट कर हम आगे बढ़ेंगे। In a manner worthy of the Lord, जो रीति परमेश्वर के लिए योग्य, परमेश्वर के जन के लिए उचित है, वैसे हम चलेंगे, और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। And it will be fully pleasing to Him. Not on the Lord's day alone. Every day, every moment,
May heaven rejoice over us and God be pleased with us. സ്വർഗം നമ്മുടെ മേൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കട്ടെ. പിതാവ് എപ്പോഴും നമ്മേൽ പ്രസന്നനായിരിക്കട്ടെ. അവനെ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവരായി നാം അവനിൽ വളർന്ന് പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ. May you be strengthened with all power according to his glorious might. उसके सामर्थ्य के अनुसार हम भी बलवंत हो जाए. हम रोते नहीं रहे कि शैतान के सामने हम बलहीन हैं, हम गिरते हैं, हम अभी वापस घायल हो गया, वापस हम पकड़ा गया. नहीं नहीं नहीं. We'll grow from strength to strength, being empowered from on high, having been fed upon heavenly stuff. हम बल के ऊपर बल प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे, ऐसा बलवंत हो जाएंगे. According to his glorious might, for all endurance and patience with joy. Hallelujah. इतना ही नहीं है, हम बड़े खुशी से बढ़ते जाओगे, रोते हुए नहीं. हम बड़े खुशी से बढ़ते जाओगे और धीरज और सहनशीलता से हम आगे बढ़ते जाएंगे. बल के ऊपर बल प्राप्त करेंगे. കരഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല, വിലപിച്ചുകൊണ്ടല്ല, അയ്യോ എനിക്കിങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ, എനിക്കിത് വിടേണ്ടി വരുന്നുവല്ലോ, എനിക്കത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നുവല്ലോ എന്ന് വിലപിച്ചുകൊണ്ടല്ല, സന്തോഷത്തോടെ സ്വർഗീയ ലക്ഷ്യം കണ്ടുകൊണ്ട് അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായി നാം അവന്റെ കൃപയിലും അവന്റെ ശക്തിയിലും മുതിർന്നു വരണമെന്ന് സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो जाए. हालेलुया. हम ऐसे गिविंग थैंक्स टू द फादर हु हैज क्वालिफाइड यू टू शेयर इन द इनहेरिटेंस ऑफ द सेंट्स इन द लाइट. जो ज्योति में सदा चलने वाले संत लोगों के लिए जो मीरास को उसने तैयार करके रखा है, उसका वारिस बनने के लिए उतना मैं ही पाऊं. हालेलुया. हमने यूनानियम में पढ़ा तुम्हारा प्राचीनों ने कितना पाया था. We were reminded how our patriarchs received much from the Lord. They prospered in everything they did. अब प्रभु यहाँ कहते हैं that you shall inherit the same promise made to them. Hallelujah. You will inherit all that has been kept ready for them. उनके लिए जो तैयार करके रखा है, जो ज्योति के पुत्र है, संतान है, उनके लिए वो तुम भी पाओगे. उसके लिए बढ़ते जाओ, ये प्रभु का आग्रह है. पवित्र आत्मा उसके लिए हमें मार्गनिर्देशन देते रहता है. हम यहां से आगे बढ़कर इब्रानियों में नजर डालता. We move on to the letter to the Hebrews chapter 6 7th verse. इब्रानी 6 अध्याय का 7वां वचन हम पढ़ते हैं. क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर, जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपात उपजाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है. The land that has drunk the rain that often falls on it and produces a crop useful to those for whose sake it is cultivated, receives a blessing from God. प्रभु कहता आशीष वो बरसाएगा. He will continue to shower his blessings upon us. Heavenly dew will continue to descend upon us. स्वर्गीय आशीष की बरसात हमारे ऊपर बरसाया जाएगा. स्वर्गीय ओस हमारे ऊपर उंडेल दिया जाएगा, लेकिन हम उसको तुच्छ न मानेंगे. We will not waste it. Hallelujah. We will not let it go useless. हमें उपजाऊ बनना है. फल हमसे निकलना चाहिए, तब प्रभु बहुत खुश होगा. प्रभु आशीष के ऊपर आशीष बरसाएगा. We will not belittle his grace. We will not take this lightly, but we will long to be more and more fruitful, and we will produce such crops useful to our people, to God's people, and to the land at large. हम ऐसे फल लाते रहेंगे हमारे लिए, परिवारों के लिए, कलीसिया के लिए, जगत के लोगों के लिए. ഹല്ലേലൂയ. എപ്പോഴും പെയ്യുന്ന സ്വർഗീയ മഴ കുടിച്ചിട്ടും വീഴുന്ന സ്വർഗീയ മഞ്ഞ് പ്രാപിച്ചിട്ടും നാം ഫലരഹിതരായി തീരരുതേ. അധികം ഫലം കായ്ക്കുന്നവരായി നമുക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി
സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി, ലോകത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം ഫലം കായ്ക്കുന്നവരായിരിക്കാം. उसका 8 में इसे पढ़ते हैं. अगर हम ऐसा नहीं होता, ऐसे काटे और निकम्मे निकलता, तो उसका अंत जलाया बन जाना है. If we wear thorns and thistles, it will be cursed and will be burned. हम आगे बढ़ते हैं. हम श्रापित नहीं होने के लिए, हम अनुग्रह बनने के लिए बुलाए गए लोग हैं. हमने जुदा नियम से पढ़ा. और तो श्राप का कारण नहीं बने रहेंगे, तो अनुग्रह का कारण बने रहेगा. अभी यहाँ आकर हम पढ़ते हैं अनुग्रह का कारण हम कैसे बनता है. स्वर्गीय ओस और स्वर्गीय आशीष की बरसात से सींचा गया. We will bear fruit. Amen. We'll submit ourselves to the guidance of the Holy Spirit. And we'll allow this true wine to bear fruit through us, through our obedience to Him. हम आज्ञा पालन कर कर अपने आप को उसका हाथ में सौंपते रहेंगे, तो ये दाखलता बहुत फलवंत होंगे इन शाखाओं के द्वारा. उसी का 13-14 पढ़ते. परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करके समय जब शब्द गाने के लिए किसी को अपने से बढ़ा ना पाया, तो अपनी ही शब्द का कर कहा. When God made a promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore by himself. कहते अब्राहम के साथ जब वो वाचा बांधता है, वो समय उससे बढ़कर कोई नहीं पाया. इसके लिए वो अपने ऊपर शब्द का कर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा. This was a covenant which he entered into with Abraham. Surely I will bless you and multiply you. And thus Abraham, having patiently waited, obtained the promise. कहते इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की. बाट जोते रहा, धीरज रखकर बने रहा. He persevered in order to receive the promise in its entirety. एक इस हाथ को प्राप्त करने वाली बात नहीं है. It's not about just receiving an Isaac, but receiving us in him, in Christ Jesus. हमें भी उसने संतान के रूप में प्राप्त किया. അബ്രഹാമിനെ തന്നെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കും, നിന്റെ സന്തതിയെ ഞാൻ അതുപോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. അബ്രഹാം വിശ്വാസത്തോടെ കാത്തിരുന്ന് ആ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തി പ്രാപിച്ചു. ഇസ്ഹാക്കിനെ കിട്ടിയത് കൊണ്ടല്ല, പിന്നെയോ ഞാനും നീയും അബ്രഹാമിന് സന്തതിയായി ജനിക്കപ്പെട്ടു. എണ്ണിക്കൂടാത്ത മണൽത്തരി പോലെ, എണ്ണുവാൻ കഴിയാത്ത ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ, much more than the grains of the sand or the stars in the sky, Abraham received children. Innumerable children. Hallelujah. Even I and you are Abraham's children. और वहां लिखा है उसका 14 वचन में है कि मैं तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा. उसे उसने प्राप्त किया उसको उद्देश्य के अनुसार. उसका 18 वचन भी हम पढ़ते हैं, 18 से पढ़ते हैं. ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारे से ढाढ़स बांध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें. By two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. Hallelujah. तो कहते हैं उसने ऐसा वायदा किया, 2 बार उसको स्थिर किया, वचन दिया, वाचा बांधा. और हम जो उसके पास दौड़ कर आए हैं, सहायता के लिए आया है, we who have run to him for refuge, that we may have such strong encouragement to hold fast to the hope set before us. हमारे सामने जो आशा रखी हुई है उसको पूर्णता में पाने के लिए हम उसके पास आए हैं. उससे कृपा पाकर हम भी उसको प्राप्त करें, इतना फलवंत हो जाए और वो मीरास को अपनाए जो ज्योति के संतान के लिए रखा गया है. हालेलुया. हम उसके शरण लेने के लिए आए हैं, उसके कारण ये संभव होगी. हम उसमें बने रहेंगे. शरण लेना दाखलता में बने रहने वाली बात है. वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है. आमेन. We have this hope, a sure and steadfast
एंकर ऑफ द सोल। हालेलुया। ये हमारी आत्मा के लिए, मेरे प्राण के लिए एक लंगर है। ये नहीं हिलने वाला है, ये नहीं हटने वाला है। ये आशा है, महिमा की आशा जो मुझ में वास करता। दिस इज क्राइस्ट द होप ऑफ ग्लोरी reigning within me. Hallelujah. ഇവരത്രേ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു എന്നിൽ വാഴുന്നവൻ. ഈ പ്രത്യാശയെ എനിക്കൊരു നങ്കൂരമത്രേ, ഇളകാത്ത നങ്കൂരമത്രേ, ആടി ഉലഞ്ഞു പോകാതെ എന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന നങ്കൂരമത്രേ. वो स्थिर और दृढ़ है, वो पर्दे के भीतर तक पहुंचता है. वो सिर्फ ये जगत के लिए नहीं है, ये मृत्यु तक नहीं है. वो पर्दे के भीतर घुसने वाली आशा है. ये जो बात है, ये आशा जो है, जो मुझ में बनी रहती है, वो ये जगत के जीवन के लिए सिर्फ नहीं है. It will not remain limited to only this life on earth. It will go even beyond. Hallelujah. Enter through the curtain right to the very throne of God. Hallelujah. Before whom I will stand by His grace. Hallelujah. वहां तक पहुंचने वाली आशा है. ये भीतर के कमरे तक पहुंच जाएगा. It will go into the holy of holies and cause me to stand before the throne of God blameless. Amen. Hallelujah. ये पर्दे के भीतर तक मुझे पहुंच जाएगा. वहां परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख मुझे खड़ा रखेगा, निष्कलंक और निर्दोष. उसके लिए यीशु ने मलकीसेदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है. द फॉरनर हैज ऑलरेडी एंटर्ड, द कैप्टन ऑफ आवर सैल्वेशन हैज ऑलरेडी एंटर्ड. यीशु जो हमारा नेता है, हमारा उद्धार का प्रभु है, वो हमारे लिए आगे बढ़कर पर्दा को फाड़ कर, राख बनाकर, पद चिन्ह छोड़कर वहां तक अपने आप को पहुंचाया है. He has left his footprints. He has torn the curtain from top to bottom. Hallelujah. That we have a ready access and we have a regular guidance because He has left His footprints for us to follow. We will sure make it to the throne room in heaven. हम निश्चय पहुंच जाएगा स्वर्गीय सिंहासन के सामने. नामो അവിടെ എത്തിച്ചേരൂ. നിശ്ചയം അവന്റെ പാദമുദ്രകളിൽ നാം നടക്കും. അവന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ നയിക്കും. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തിരശീല കീറി നമുക്ക് വേണ്ടി മുൻപേ പ്രവേശിച്ചു. हालेलुया. हालेलुया. खत्म करने से पहले हम पत्रस के मुंह से सुनेंगे. We move on to 2 Peter and look into the first chapter, verses 5 to 11. दूसरी पत्रस पहला अध्याय से हम 5 से पढ़ते हैं. इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, knowledge with self-control, self-control with steadfastness, steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. Hallelujah. The culmination will be agape love. बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ. फल के ऊपर फल. आमेन. സദ്ഗുൺ के ऊपर സദ്ഗുൺ. ആമേൻ. ഒരു ഫലത്തിന് മേൽ മറ്റൊരു ഫലം. വീണ്ടും 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 ഞാൻ ഫലം കായ്ച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ആമേൻ. എല്ലാ ആത്മീക വരങ്ങളാലും പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച് സഭ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള അവർ യേശു കർത്താവിന് യോഗ്യയായ അനുയോജ്യയായ മണവാട്ടിയായി തീരട്ടെ. ആമേൻ. हर तरह का गुण एक के ऊपर एक हम प्राप्त करके आगे जाएंगे. विश्वास है, उसके ऊपर सद्गुण है, उसके ऊपर समझदारी है, समझ के ऊपर संयम रखते हैं हम, संयम के ऊपर हम धीरज से बने रहते हैं, धीरज के ऊपर हम भक्ति परमेश्वर का भाई मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं, भक्ति को भाईचारे की प्रीति रखते हैं. वी केयर फॉर ईच अदर, वी बिल्ड ईच अदर्स लाइव्स. ऐसे हम बढ़ते जाते हैं. आमीन. ऐसा भी नहीं, इसमें बढ़ते जाना अवश्य है.
कि वो आगे बढ़कर कहते हैं कि स्वर्गीय प्रेम की पूर्णता अच्छाई, स्वर्गीय प्रेम की पूर्णता अच्छाई, ऐसे बढ़ते जाए। 9वां वचन में ऐसे कहते, 8वां वचन में कहते, यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना हो जाएंगे। हालेलुया। If you continue to grow, if you continue to bear these fruits and you keep on increasing, they keep you from being ineffective, unfruitful. You will never be unfruitful. You will never be ineffective in the knowledge of our Lord Jesus Christ. यीशु क्रिस्त की पहचान में ऐसे हम बढ़ते जाओगे, एक गुण के ऊपर दूसरा गुण, ഒരു ഫലത്തിന്റെ മേൽ മറ്റൊരു ഫലം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നാം മുന്നോട്ട് പോകുമെങ്കിൽ നാം ഒരിക്കലും നിഷ്ഫലരായി തീരുകയില്ല, നാം ഒരിക്കലും മച്ചികളായി മാറുകയില്ല, നാം പ്രയോജനമില്ലാത്തവരായി മാറുകയില്ല। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का बलि बांधी यत्न करते जाओ। इसलिए माय ब्रदर्स, बी ऑल द मोर diligent and vigilant to make your calling and election sure. Hallelujah. तुम्हारा बुलाहट को नहीं भूलना। We will never belittle our calling. Amen. We will not take lightly the favor of God upon us, the blessings upon us, and will be so diligently making all efforts to make our election sure. Hallelujah. और कहते हैं, if you practice these qualities you will never fall. अगर हम उसमें बढ़ते जाओगे तो, ऐसा करते रहोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। Amen. We shall never stumble on the way. We shall never perish on the way. We will make it triumphantly to the very throne of God. परमेश्वर के सिंहासन तक हम जयवंत होकर पहुंचाया जाएगा। हम इसमें बढ़ते जाएंगे। वरन इस रीति से तुम्हारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। For in this way there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. वो कहते हैं ऐसे मुंडी नीचे कर नहीं आओगे। A rich welcome, hallelujah, a royal welcome awaits you. You will not stand in shame. Your head will not be bowed down. Hallelujah. बड़ी खुशी से, बड़े आनंद से तू प्रवेश पाएगा। Amen. You'll be led to the throne room in heaven with your head bowed down in shame, but gladly and rejoicing in your salvation. लज्जित होकर नहीं, सर नीचे कर नहीं, बड़े आदर के साथ, वहां लिखा है बड़े आदर के साथ, बड़े आनंद के साथ और आदर के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाएंगे। हालेलुया। आप फूलोगे, फलोगे और बढ़ते रहोगे। You shall be fruitful and you shall increase and your fruit shall abide. Hallelujah. Your fruit will remain. और तुम्हारा फल बने रहेगा। आइए परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप देते हैं। दाखिलता में सदा बने रहने के लिए हम जो शाखाएं हैं, जंगली वृक्ष से काट कर यह वृक्ष के साथ जोड़ दिए, हम बने रहेंगे। We are that wild branch which has been cut off to be grafted with the true vine and we will abide in him. प्रभु हम आते हैं, यीशु क्रिस्त जो सच्चा दाखलता है उसमें बने रहने के लिए आता, हटने ना दे प्रभु। हम कांटों को बढ़ने नहीं देना चाहता। We will not allow thorns and thistles to grow, Master. तुझ में बने रहेंगे, अधिक फलवंत होंगे, फल में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर की पहचान में, जानकारी में बढ़ते जाएंगे, स्वर्गीय प्रेम को पूर्णता में पाएंगे। जिसके कारण हम बड़ी आदर के साथ स्वर्ग सिंहासन के सम्मुख निर्दोष और निष्कलंक होकर खड़ा किया जाए। ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റും മുള്ളുകൾ വളരുവാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയില്ല കർത്താവേ। ഈ കാട്ട് കൊമ്പുകളെ നീ നല്ല മരത്തോടൊട്ടിക്കുവാൻ പ്രസാദിച്ചതോർത്ത് സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ ഈ സത്യമുന്തിരിവള്ളിയിൽ ചേർന്നിരിക്കും. ഞങ്ങളിൽ ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവാൻ പിതാവ് സന്തോഷിപ്പാൽ വലിയ ബഹുമാനത്തോടെ ആദരവോടെ പിതാവിന്റെ മഹത്വ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവേശിക്കപ്പെടുവാൻ हम आते हैं प्रभु।
तो हमें तैयार करते जा अब्बा, that we may bear much fruit. अब्बा, direct us, correct us, prune us, that we may bear much fruit for the glory of God. तुम्हारी सहायता कर प्रभु, चलते रहो, टलना दे कर भी हमें बना फलवंत, अधिक फलवंत होने के लिए तुम्हें चला प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर प्रसन्न हो जाए और अधिक महिमा पाए। यीशु के नाम में आमीन आमीन। आशीर्वाद के लिए तैयार। पिता परमेश्वर का सीम प्रेम निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई के सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली का हर परिवार का हर एक सदस्य के साथ, और जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए हमने प्रार्थना करते आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की, मांगत की, उन सबों के साथ, वह कितने भी दूर के और समीप के क्यों न हो, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, और हमारे देश के और विदेश के इस कोविड-19 की महामारी के कारण तड़पने वाले लोगों के साथ, और अनेक तरह के संघर्ष से गुजरने वाले लोगों के साथ, उसकी सहायता करने वाले लोगों के साथ, और दुनिया भर के सारे देशों के यीशु मसीह के संतों के साथ, खासकर कर अनेक तरह की पीड़ा सहने वाले हमारे भाई और बहनों के साथ, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक निरंतर बने रहे। आमीन और आमीन। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीर्वादित करे, साथ बने रहे, हर जरूरत को पूरा करें, स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा कर, यीशु के नाम में आमीन। May the gracious Lord be with you all, cause his face to shine upon you and give you peace. Flood your heart with heavenly peace and joy and happiness. Keep you safe and secure and in perfect health in Jesus' name. I wish you all a very blessed, glorious Lord's Day. एक बहुत सुंदर और एक आशीषित प्रभु दिवस की कामनाएं, शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं, यीशु के नाम में आमीन।